प्रयागराज में झलवा स्थित शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज में 16 मार्च 2024 को लैंप लाइटिंग तथा शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि प्रयागराज एवं कौशाम्बी के एमएलसी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एवं एएनएम के 3rd बैच के छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। इसमें नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने मरीजों की हमेशा शुद्ध मन से सेवा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर राज बवेजा, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र, जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर ऋतुराज एवं केएन दयाल आरएमएस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर श्वेता रानी सीएम ने की। उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव डॉक्टर कौशल कुमार तिवारी ने शपथ लेने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संयुक्त सचिव डॉक्टर आरती त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र गुप्ता, एडवोकेट आनंद प्रकाश पांडे, विद्या उपाध्याय, आलोक शंकर मिश्र, अजय प्रकाश पांडे, विनोद शर्मा, मनोज कपूर, योगेश साहू, भैयन पासी, अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक शुक्ला, संस्था के समन्वयक डॉक्टर मलय तिवारी, प्रोफेसर प्रशांत अवस्थी, डॉक्टर नीरज शुक्ला, प्रोफेसर आशुतोष पांडेय, प्रोफेसर डीपी अग्निहोत्री, प्रोफेसर जेपी मिश्रा, डॉक्टर संदर्भ शुक्ला, डॉक्टर अंशुमान श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश चंद्रा, प्रोफेसर केपी तिवारी सहित संस्थान के सभी फैकल्टी, स्टाफ तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज में 100% उपस्थिति एवं बेहतर अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने एक बड़ी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का सुचारू संचालन प्रोफेसर नमीर अल हसन ने किया। पेश है कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। Thank you again, sir and ma'am. I now request our President Dr. Dhiren sir to welcome our guests by presenting them a garland, shawl and memento. To start the events, I call upon stage Asmat and group for the mythological dance. Our institution, Shambhunath Research Institute of Medical Sciences, it started nursing courses in the year 2001. We have BSc Nursing, GNM and ANM with 40 intake. And soon we are going to upgrade it to 100 seats. And to also, we have also going to apply for diploma in OT technician and lab technician. In the coming years, we may have post-PhD and MSc too. And at present, we have around 200 students, 100 in UG course and 90 in diploma course. And about the lamp lighting ceremony. Lamp lighting ceremony is an auspicious occasion in every nurse's life. It is held in the reverence of Florence Nightingale, the lady with lamp, who is the pioneer of modern nursing. Nursing is the only profession that follows lamp lighting ceremonies. As we all know, light is a symbol of knowledge, it removes ignorance, and is a lasting wealth by which Lord's can be achieved. The lamp lighting ceremony, it formally recognizes the students' entry into the nursing profession. Nursing is a dynamic and challenging profession
humanity. Health is a right of every human being. There is no recession in nursing jobs. I repeat, there is no recession in nursing jobs. So I am very thankful to your parents that they have given an opportunity and they are supporting you by bringing you to the nursing profession. There is a high demand for nurses globally. So upgrade your skills. You all have made a right decision by joining the nursing world now. Students, I take this opportunity to wish you a very all the best for your academics and your nursing career. Let the thinking that you make today always inspire you to cherish and uphold the values and traditions to the nursing profession. Once again, all the best to you all. Thank you. The event, as I have described, is about lighting the lamp of the nursing, the profession, and keeping it alive. So, to start the event, the students will carry the lighting lamp onto the stage. to pass my life in purity and to practice I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all my family affairs. Coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty will I endeavor and to aid physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thanks. To do what nobody else will do in a way that nobody else can, in spite of all we go through, is to be a nurse. The quote of Florence Nightingale. And to understand and to shower the blessings, none better than Padma Shri Dr. Raj Baneja, who I request to administer the oath to the students of the nursing. मैं पीछे से लेकर आगे तक आपका अपना मानने का मतलब ये होता है कि हम कृष्ण जी भगवान का दर्शन करके यहाँ बैठे हुए इसको देख के पहले उनका ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान पूर्वक गुरु की पूजा पूर्वक गुरु पदम मंत्र पूर्वक गुरु भक्ति मोक्ष पूर्वक गुरु
अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्धांत पादोदकम भवे नित्य शुभम निराभासम निराकारं निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम रुद्रमं नमामि हम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम साईनाथ जय साईनाथ। आदिनाथ विश्व प्रणाम वाले। ये मैंने क्यों बोला, ये जान लीजिए कि हम लोग को जो एजुकेशन मिली है कि हम KGFC के हैं, हॉलीडे स्कूल में काम किया, चंडीगढ़ में सिलेक्शन भी हो गया, तो भाग्य कहाँ यहाँ इलाहाबाद में मेरा आना था, मैं आ गई और आज आपने मुझे मंत्रण किया है। ये किसी से नहीं करते हुए मैंने आज बोला है। आप जहाँ भी जाएंगे आपके साथ भगवान है, भगवान जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वो आपकी आस्था भी है और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो आज मुझे ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, उसको मैं उदाहरण या बोलना नहीं चाहती। मैं तड़ाते हुए नमन करना चाहूंगी कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जिन बच्चों ने आगे आगे तो सेकंड का बाकी भी मेरे पीछे छतरी आए हैं मेहनत करके, उनको सोचिए वो कितना अच्छा कर रहा हो। और मेरे मन से जो आ रहा था कि भगवान करे कि आज का जो हम लोग का मेडिकल प्रैक्टिस है वो इनके हाथों से चेंज करेगा। ड्यूटी हम लोग के डॉक्टर्स की है सबकी सेवा करना, सबसे प्यार से बात करना, सबके दुखों को हरण करना। वो क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये तो आप लोग जो हमारे परिवार के हैं एज पेशेंट्स, जहाँ तो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, हम लोग शरीर इलाहाबाद में रह रहे हैं तो हम लोग इलाहाबाद के सब रिश्तेदार हैं, उनके दुख दर्द को पहचानना मुश्किल है, तो दिक्कत नहीं कर सकते। आपको आएंगे आपके सुनने में भी ये किस तरीके से बातें होती हैं, क्या करते हैं लोग, क्या ये ठेका नहीं रखा कि हम लोग पैसा कमाने में नहीं, ये हम लोग ने पहले दिन ही ये सोच लिया था कि हम डॉक्टर बनेंगे सेवा करने के लिए और सबकी मदद करने के लिए। तो दो बच्चे आज पास आउट हो रहे हैं, क्या आगे बढ़ेंगे और मेडिकल में एमबीबीएस करेंगे, MS करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे। पर जान लीजिए पैसा कमाने की कोशिश मत करिए। पैसा कमाने से जो आपको भगवान ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कौन है हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी भगवान, जिन्होंने हमको डॉक्टर बनाया है, उन्होंने किसलिए बनाया कि हम लोग सेवा कर सकें। तो मैं मन से तन से इस यहाँ के कॉलेज को प्रार्थना करूँगी, क्या भगवान की तरफ से प्रार्थना करूँ उनकी शक्ति दे कि उनके बच्चे यहाँ के बच्चे डॉक्टर बन पाए आगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे 2 मिनट की बात करने के लिए। I request Dr. KP sir, our chief guest, KP Srivastava sir, to present the prize for BSc Nursing 4th Sem Batch 21-22. The attendance. चीफ गेस्ट डॉक्टर KP श्रीवास्तव सर, उनका जुड़ाव इस शहर से
भाई शहर के हर व्यक्ति से हमेशा से रहा है, उनका इंट्रोडक्शन देना किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल तो है नहीं। मैं एक ब्रीफ प्रोफाइल की कोशिश करता हूँ अपनी नई जनरेशन को बताने के लिए कि पैदा तो सर रामनगर मेजा प्रयागराज में हुए थे और अग्रवाल इंटर कॉलेज प्रयागराज से ही स्टडी करने के बाद बीएससी बीसीसी इलाहाबाद से किया गया, एमबीबीएस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के बाद पीजी केजीएमयू लखनऊ, जो अब केजीएमयू है उसमें केजीएमसी हुआ करता था। 9 फरवरी 1993 में सर केपी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। 6 साल तक एज ए प्रेसिडेंट सर वहां पे थे। उसके बाद सन 2000 में प्रयागराज के मेयर महापौर का भी इलेक्शन सर ने जीता और 12 अप्रैल 2022 से आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रयागराज एंड कौशाम्बी हैं। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर केवी श्रीवास्तव सर को जो बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आकर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और डॉक्टर धीरेन्द्र जी मेरे घर आए और मुझको बुलाने के लिए आए तो मुझे लगा कि शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसका प्रयागराज में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ है, नाम है। मैंने कहा मैं जरूर चलूं, थोड़ी देर जरूर हो गई आने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर राज बागेजा जी आई, पद्मश्री राज बागेजा, वो हमारी गुरु, उन्होंने हमको पढ़ाया और इतनी अच्छी टीचर पूरे हिंदुस्तान का नाम है। एज के कारण थोड़ा और जैसा बताया कि चिकनगुनिया के कारण थोड़ा उनकी एक्टिविटी सीमित हो गई है, लेकिन हमने उनका वो समय भी देखा है तो वो रीडर बन के इलाहाबाद में आई थी और मैं वहां का स्टूडेंट था। डॉक्टर धीरेन्द्र जी जो इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्वा हैं, मैं तो सोचता हूं कैसे इतना बड़ा ग्रुप ये चलाते हैं। जहां जाइए वहीं शंभुनाथ ग्रुप। प्रयागराज में तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में पूरा 80% सब हींगा है और सामने भी मुझको जाना पड़ता है क्योंकि वही मेरा क्षेत्र है। इधर मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ किनारे हमें लगता हजारों बीघा जमीन इन्होंने शंभुनाथ के नाम से खरीदी। शिक्षा के प्रति की जो ललक है वो पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशंस को अच्छे प्रकार से चलाना एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है और मैं तो उस टीम को भी बधाई देना चाहता हूं जो आपके मार्गदर्शन पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो यहाँ के प्रिंसिपल महोदया हो, सहयोगी लोग हो, टीचर्स हो, सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने मिलकर डॉक्टर धीरेन्द्र का सहयोगी बनकर इंस्टीट्यूशन को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं शंभुनाथ ग्रुप को
छात्र और छात्राएं हैं, उनको इस बात का नाज हो, गरूर हो जो शंभुनाथ के स्टूडेंट्स। आज बच्चों में अनुशासन देखने को मिला। मैं बच्चों से यही उम्मीद करूंगा जो अनुशासन आपने यहाँ बताया है, ये अनुशासन आपके जीवन में निरंतर बना है। अनुशासन से इंसान आगे बढ़ता है। और फिर आपने तो नर्सिंग का और जीवन बनने का जो पीड़ा उठाया है, तो इससे बड़ा सेवा कार्य क्या हो सकता है? आपने देखा हो वो काम जो घर के बच्चे, बेटा, बहू, बेटी नहीं करते, वो काम में नर्सिस करते। तो मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। और आपने ये कार्य करने का पीड़ा उठाया है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे आशा करता हूं कि समाज आपसे बहुत उम्मीदें करता है। आप जो ये न सोचिए कि आप नौकरी करने के लिए आप जीवन कर रहे हैं, बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं। कोई डॉक्टर कोई पैसा कमाने के लिए अगर डॉक्टरी कर रहा है तो मैं कहूंगा कि उसको डॉक्टरी नहीं करना चाहिए। आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत करोगे और भगवान अपने आप आपको देंगे, इतना तो दे ही देंगे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, आप किसी के साथ हाथ करें। समाज बदल रहा है, स्थितियां बदल रही है। हमारे देखते देखते इतना लोगों को विश्वास करना अब वो बात नहीं। डॉक्टर बाबेजा से कह रहा पहले मरीज आते थे, एक से एक सीरियस मरीज आते थे, हम उनको भर्ती करते थे, इलाज करते थे। ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर चले जाते थे, उसकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उन्हें सीरियस करते थे, लास्ट पे आते थे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। अब शब्द कभी डॉक्टर को कोई बोलता नहीं। अब स्थितियां क्या है? बात बात पर लड़ाई करते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं। अब वो समझते हैं कि हमने पैसा दिया है, नर्सिंग होम में आए हैं, प्राइवेट अस्पताल में आए हैं, पैसा दिया है तो हमने डॉक्टर को खरीद लिया। डॉक्टर को भगवान बोले अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से वो मरीज को ठीक करने का पूरा प्रयास करता है। हर डॉक्टर ये चाहता है कि हमारा मरीज ठीक हो जाए, उसको शांति मिलती है, खुशी मिलती है अगर मरीज ठीक हो जाता है। आजकल एक नई बीमारी फैल गई है, जो लोग बड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, नेट पर ज्ञान अर्जित करके आते हैं, आता जाता तो कुछ नहीं, नेट पे पढ़ लिया, अब बार बार वही बात करेंगे। अरे भाई नेट तो हमको ही पढ़ना आता है, हमने 11 साल 12 साल पढ़ के डॉक्टरी हासिल की, 30-40 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, ऐसे थोड़ी इलाज कर रहे हैं। लेकिन वो कौन समझा? आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, आप डॉक्टर के एडवाइस पर आप इलाज करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी अगर आपके मन में आए कि चिकित्सक ने सही परामर्श नहीं दिया, जिसमें कमी है, तो आप इस बात को अपने डॉक्टर इंचार्ज से कह सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि आपने पढ़ा है। और अगर आप अपने डॉक्टर इंचार्ज से कहेंगे कि सर आपको ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप उस पर विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा। और आपके कहने के बावजूद भी अगर आपको कहता है कि नहीं यही सही है,
कि हमारे नर्स से गलती हो, मैं कभी नहीं कहूँगा, कहना नहीं चाहिए। अपनी नर्स को समझाना, भविष्य में गलती न करें, जो गलती की है उसके लिए क्षमा याचना भी करें हमसे, सब भविष्य में गलती नहीं होगी, और मरीज को भी किसी न किसी ढंग से पुनः ठीक करना ये डॉक्टर और चिकित्सक की जिम्मेदारी है। चाहे एक भी पैसा मरीज न दे, लेकिन अगर गलती हुई है तो उस गलती को ठीक करना, अपने पैसे से उसका पुनः इलाज करना, उसको सही सलामत घर भेजना, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अभी मैं चेन्नई गया था, मेरी बहू वहां भर्ती थी, डिलीवरी के लिए गई थी। मैंने देखा क्या डिसिप्लिन है सर, जैसे गेट में घुसिए, चौकीदार हो चाहे गार्ड हो चाहे स्वीपर हो चाहे नर्स हो चाहे कंपाउंडर हो, तो छुप के आपको सलाम करेगा, नमस्ते करेगा, आपसे कहेगा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हमारे यहाँ कर सकते, हम प्रेम से बोलना ही नहीं चाहते, प्रेम से बोलना ही नहीं चाहते। जब इस विषय में आए, दूसरों का सम्मान कीजिए, प्रेम से बोलिए, जितना आपने सीखा है वो गुण है, उसके बाद हमसे आप लोगों की सेवा कीजिए। और ये बात भी सच है, अगर आप ईमानदारी से सेवा करेंगे, आपने अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयास किया, आज जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं 3 साल या 4 साल में, इस ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपने अपने अध्यापकों और प्रिंसिपल द्वारा बताई गई चीजों का अध्ययन किया, फिर जहां भी आपको नौकरी मिली वहां आपने अनुभव प्राप्त किया, और उस अनुभव के आधार पर डॉक्टर की एडवाइस पर आप ईमानदारी से अगर आप इलाज में सहयोगी बनेंगे, तो निश्चित है कि आपको अपने जीवन में कम से कम समस्या है। देखिए, अभी हम विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, शासन ने बहुत बड़ी संख्या में नर्सेस के अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर्स किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपनी जबान से कहा कि इतनी संख्या में हम नर्सेस का अपॉइंटमेंट करना चाहते थे, लेकिन 90% नर्सेस के लिए जो प्रार्थना पत्र आए थे वो इसके लायक नहीं थे या लायक नहीं थे, उनको अपॉइंटमेंट दिया जा सके। और इसीलिए उन्होंने इधर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को रोकने का काम किया, और उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अगर चिकित्सा व्यवस्था को सुंदर करना, सुदृढ़ करना, तो सरकार नर्सिंग कॉलेज खोलनी पड़ेगी, और उस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हुआ है। इसीलिए हुआ, सत्य बताया, आप बुरा ना मानिएगा, हमारा भी छोटा सा अस्पताल एएनएम जीएनएम रजिस्ट्रेशन वहां कराया, नौकरी हमारे यहाँ कर रही है। एक दिन पढ़ाई नहीं किया, एक दिन पढ़ने नहीं, और नौकरी ढूंढने लगे। ऐसे थोड़ी, पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, कुछ अनुभव प्राप्त कीजिए, कुछ सीखिए, तब तो आप मरीज की सेवा करेंगे। लेकिन अजीब सा चलने चल गया, नहीं जानता धीरे जी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन इलाहाबाद में जितने छोटे छोटे नर्सिंग कॉलेज सब खुले हैं, उसको ग्रुप बुलाते हैं, मैं जाता हूँ वहां,
सर्टिफिकेट के लिए और नौकरी करने के लिए जो आदमी आएगा वो क्या सेवा करेगा? जो कुछ सीखेगा ही नहीं तो इलाज में मदद कैसे करेगा? लेकिन आज यहाँ आके देख बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की जो डिसिप्लिन है और यहाँ के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, अब देखिए काउंसिल के माध्यम से बच्चे आने लगे। पहले तो था जिसको मर्जी हो भर्ती कर, अब पहले वहां इम्तिहान दो, सेलेक्ट हो तो काउंसिल के माध्यम से यहाँ सीट भी लिमिटेड है, इसीलिए सरकार कर रही है। अगर ये नर्सिंग का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा तो इलाज कैसे करें? लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है कि अभी भी जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहां बच्चे रजिस्ट्रेशन कराकर फीस जमा कर नौकरी ढूंढने लगते हैं। 1 साल भी पढ़े नहीं, 3 साल में, और नौकरी उनको पहले चाहिए। 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं, स्कूल में कब जाएंगे, कब पढ़ेंगे? इसलिए आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है नर्सिंग में। विदेश जाइए, अमेरिका इंग्लैंड जाइए, डॉक्टर लोग बहुत कम काम करते हैं, सारा काम नर्सेस करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो रहा तो डॉक्टर कभी जाती ही नहीं, सारा काम नर्सेस का है। और वो कॉम्पिटेंट हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं कि किसी भी मरीज को कभी शिकायत नहीं। अगर उसको कुछ पूछना हो तो टेलीफोन पर अपने डॉक्टर के साथ से बात कर लेती, लेकिन डॉक्टर को नहीं बुलाती, डॉक्टर को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी कॉम्पिटेंट, इतनी अच्छी नर्सेस हैं। और इंडिया से भी बहुत बड़ी संख्या में जो काबिल नर्सेस हैं वो विदेश जा रहे हैं, और वो इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं जितने यहाँ डॉक्टर को 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने उनको सैलरी वहां मिल रही है। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, सारी सुविधाएं उनको दी जा रही है। नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपका काम भी चल रहा है, 2 पैसे आपको मिल भी रहे हैं, आप मरीज की सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा से बड़ा काम कर रहे हैं, अपना ये लोग ठीक कर ही रहे हैं और लोग भी आप ठीक कर रहे हैं अपना। और सोचिए, कभी कभी पिक्चरों में आप देखते होंगे अगर नर्स मुस्कुरा कर अपने मरीज से बात करती है, अच्छे से उसका इलाज करती है, कितना आशीर्वाद उसको, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तब 90% लोग आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए एक ही बात है कि मैं जा रहा हूं, अपनी बात जब इस पेशे में आप आए तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, सीखने के बाद अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, और मरीजों की ऐसी सेवा कीजिए तो आपको आशीर्वाद देके जाए। कोई बात नहीं आती, डॉक्टर से पूछिए, कोई पेड़ से सीख के नहीं आती, पूछने में कोई संकोच नहीं है। अपने डॉक्टर से पूछिए कि सर हमारे विचार से तो ये होना चाहिए, आप ये किसका किया, और बताएगा आपको क्यों हमने ऐसा किया। हमारी भी बहू आई है, डॉक्टर विजय जानती है, MBBS है, MS है, DND है, मास्टर की लंदन है, उसी की जिसमें गया था चंदन, वो क्लास लेती है, नर्सेस पढ़ाती है, इसीलिए पढ़ाती है, इनको कुछ आता ही नहीं। तो सब प्राइवेट संस्थानों से आई हैं, लेकिन ये बात सच है कि सरकार कटिबद्ध है नर्सिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, और बढ़ा के छोड़ेगी। हमारे योगी जी और मोदी जी, उनकी सोच है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किए जाए, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों का इलाज हो, अच्छा पठन पाठन हो, अच्छे से पढ़ें। इन्हीं सबकों के साथ आज जो हमारे सब गेस्ट आए हैं, जितने मेहमान लोग आए हैं, सभी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर धीरेन्द्र जी का और शंभुनाथ का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज पहली बार आपने अपने शिक्षक को बुलाकर
बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने तो अपने बेटे से कहा कि जाकर किसी दिन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी के पास बैठो, कुछ उनसे सीखो, जानो। बड़े अनुभवी आदमी हैं, आज आना चाहता था, नहीं आ पाया कुछ कारण से। तो आएगा, चाहे अजय जी के साथ आए, चाहे पंडित जी के साथ आएगा, आपसे बैठेगा, कुछ आपसे सीखना चाहेगा। बड़ों से सीखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बच्चे दूसरों से ज्यादा सीख लेते हैं, अपने पिता से कम सीखना चाहते हैं। आजकल ये है, वो आएगा तो उसको कुछ गुरु मंत्र दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने नर्सिंग एज ए करियर चुना है, एज ए प्रोफेशन चुना है, उनके फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस आपका है वो डेफिनेटली इन सबको एक नई दिशा दिखाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सर, प्रेसिडेंट विधान से, सर के अपना वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर के श्रीवास्तव साहब, हमारी डॉक्टर राम बगेचा पद्मश्री, हमारे इस संस्थान में आए मिनिस्टर कमिश्नर जितेंद्र कुमार साहब, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब, मिनिस्टर सीएमओ डॉक्टर डॉक्टर ऋतुराज साहब, इनके दयाल साहब, इन सभी का, और हमारे सभी मित्रगण, हमारे अन्य सारे कॉलेज के सारे बच्चे, हमारे टीचर, हमारे सारे फैकल्टी, इन सभी का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चों का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो रहा है, तो हमने इसी पर हम बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमने अपने यहाँ एएनएम में इसी स्थिति के लिए लोगों ने एडमिशन लेना चाहा कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप यहाँ से केवल एडमिशन करा करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हमने एएनएम कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। हमारे यहाँ के एएनएम कोर्स की 400 सीटें खाली रखा। हमने कहा हम इस तरह से नहीं करेंगे, जो भी बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में आएंगे उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। जो एडमिशन लेगा वो हमारे किसी भी कॉलेज में ये सिस्टम है कि अगर लड़का कॉलेज नहीं आएगा तो हमारे एडमिशन नहीं होगा, उसकी अटेंडेंस 60 होगी, वो इम्तहान देने से वंचित हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने प्रयास से इसी किया कि बच्चे कॉलेज आएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी। बच्चे पढ़ेंगे तो कॉलेज का नाम होगा, बच्चों के घर परिवार का नाम होगा, सारे उसमें अच्छी शिक्षा बच्चे पाए रहेंगे। तो क्योंकि नर्सिंग का ऐसा व्यक्तित्व है नर्सिंग का, इनको सारे किसी भी स्वस्थ आदमी को नहीं देखना है, उनको सदैव से बीमार और जो व्यक्ति है उन्हीं को सेवा करना, उन्हीं की, और उन्हीं के साथ में जो डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों के माँ बाप, उनके परिवार के सदस्य उनको नहीं देखना चाहते, उनको नर्सिंग सारी सेवाएं उनको प्रदान करती है। तो इसी समारोह में आज सभी ने शपथ ग्रहण किया, नैप लाइटिंग किया। इसके लिए मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे बच्चे आगे बहुत ही सुचारू रूप से और कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने कर्तव्य के पालन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा अपने मुख्य अतिथि साहब जो आज इस हमारे बच्चों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आज उनके परिवार में मैडम बीमार हो गई थी, ग्लूकोज चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे यहाँ इस स्थिति पर भी आए। डॉक्टर राम बगेचा जो कि जाति कहीं नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आज उन्होंने आई, इसके लिए हम उनके विशेष रूप से आभारी। डॉक्टर सीएमओ साहब हमारे यहाँ के आज विशिष्ट थे, लेकिन सरकारी काम काज होने की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ से अपने यहाँ से सीएमओ साहब को एडिशनल सीएमओ साहब भेजा हमारे यहाँ, तो हम उनके भी बहुत आभारी। और आप लोगों की
कृपा दृष्टि हमारे लोगों के ऊपर बनी रहे, इसी हम विशेष कामना के साथ आप सभी को एक बार पूरा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। Thank you very much, President sir. Now we await a very beautiful performance which has been prepared by the students of this College of Nursing. Good afternoon everyone. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ एकत्रित होने का कारण हमारी ओन सेरेमनी और लैम्प लाइटिंग का अवसर है। नर्सिंग की पहचान बनाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं, आज उन्हीं की याद में मैं आप सबको उनके जीवन की कहानी सुनाने वाली हूँ। सन 1820 से पहले की ईस्वी में, यानी पुराने जमाने में, जब लोगों का विश्वास डॉक्टर्स की दवाइयों के अलावा अंधविश्वास पर हुआ करता था,